Good morning, all. How are you? Okay, so without wasting any time, let's start with today's session, and it is nothing but error spotting. In the last lecture, we stopped at question number 10, so it is obvious that we'll be starting with question number 11. We'll be continuing from where we left. So, is the screen visible to you all? Is my voice audible to all? Okay, fine. Chalo. Let's move on then. Question number Yes. So question number 11. Okay. So as we are doing it for the past couple of lectures, I'll be reading the sentence once for you. Then you will be getting roughly a minute to solve this. And then after that, we'll be discussing and I'll be giving explanation on the required subjects. Okay. So without wasting any further time, let us start with today's session, question number 11. And here I'll read it for you once. While the concert ended, the crowd, silent till then, clapped and cheered enthusiastically. I'll read it again. While the concert ended, the crowd, silent till then, clapped and cheered enthusiastically. So you have 1 minute to solve this question and your time starts now. Okay guys, so your time is up. चलो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका. चलो कमेंट्स में बताओ मुझे क्या लगता है आपको. पार्ट 1, 2, 3, 4 कहां पर एरर होगा. ओके, आकांक्षा इज सेइंग पार्ट 1 में एरर है. ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स. ओके चलो, सो लेट अस डेल्व इनटू दिस. आई विल टेल यू कहां पर हो रहा है एरर. चलो, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि while the concert ended, the crowd, silent till then, clapped and cheered enthusiastically. अब देखना, अब इसका कहना क्या है इस सेंटेंस का कि जब वो कॉन्सर्ट एंड हुआ था, जो क्राउड था जो तब तक बिल्कुल शांत था, then it suddenly clapped and cheered enthusiastically. ठीक है ना. तो यहां पर देखना, यहां पर एरर आपके पार्ट 1 में है. ठीक है ना. यहां पर क्या यूज किया है, एंडेड. एंडेड क्या है, अब देखना एंडेड क्या है.
एंडेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ एंड, ठीक है ना। V1 क्या होता है, एंड, देन V2 होता है एंडेड, एंड V3 अगेन इज नथिंग बट एंडेड। हाँ या ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? V1 is end, V2 is ended and V3 is again ended। तो ये कॉन्सेप्ट एंड हुआ। तो वाइल जो कंजंक्शन है, वाइल जो कंजंक्शन है ये यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। वाइल ये कंजंक्शन गलत है क्योंकि वाइल जो है वो एंडेड के साथ सही से मैच नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाइल की जगह पर व्हेन द, so sorry, when the, I'm so sorry, again I'll come to the point। while की जगह when होना चाहिए क्योंकि when क्या होता है कि when the concert ended, when के साथ ended concert वर्ब सही से जाता है V3, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले ही एंड होगा। अब अगर आपको while रखना है तो while the concert was ending, तो while के साथ कौन सा जाता है, while के साथ जाएगा आपका ing वाला। While the concert was ending, the crowd which was silent till then started clapping। तो clap का क्या बन जाएगा, clap का clapping बन जाएगा। and cheered enthusiastically and was cheering enthusiastically। तो parallelism अगर करोगे तो clap की जगह clapping, cheer की जगह cheering आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको while रखना है तो, लेकिन while नहीं रखना, मतलब while रखना है तो ing आना चाहिए, when रखोगे तो आपका पार्टिसिपल ईडी वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका गलती है, while the concert ended की जगह पर होना चाहिए when the concert ended, ठीक है ना, when the concert ended। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई क्या? ओके 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 फाइन, ओके ओके, चलो चलो जी, देन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा एक्सप्लेनेशन उसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फोटो निकालो, जैसे भी आपकी मर्जी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वी नीड टू रिप्लेस वाइल विथ व्हेन क्या होता है, व्हेन रिफर्स टू अ टाइम दैट अ सिंगल एक्शन हैपेंड, बट वाइल रिफर्स टू थिंग्स दैट आर अकरिंग एट द सेम टाइम। मतलब प्रोसेस में होना चाहिए, ऑन गोइंग होना चाहिए, तब वाइल आएगा। गिवन सेंटेंस refers to the start of an event, clapping and cheering at the end of another, ending of concert, ठीक है। चलो, तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वही है उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। We have many rooms in our house, several of which have not been in use for years। I read it again। We have many rooms in our house, several of which have not been used for years। So again you have roughly 1 minute to solve this question and your time starts now।
ओके, सो योर टाइम इज अप। चलो जल्दी मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। ओके, वैष्णवी सेइंग 4, महेश इज सेइंग पार्ट 4। ओके ओके, और बाकी लोग। ओके चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलो, वी हैव मेनी रूम्स, पार्ट ए क्या कह रहा है, वी हैव मेनी रूम्स। चलो, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सही है। वी हैव मेनी रूम्स कहां पर, इन आवर हाउस, इन आवर हाउस भी सही है, यहाँ पर प्रेपोजिशन इन जो है वो सही से इस्तेमाल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सो पार्ट 2 इज ऑल्सो राइट, इन आवर हाउस। सो वी हैव मेनी रूम्स इन आवर हाउस, सेवरल ऑफ विच, मतलब जिसमें से काफी सारे या बहुत सारे या उसमें से कोई, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। have not been in use for years, have not been in use for years, this part is also absolutely correct, कोई दिक्कत नहीं है, have का इस्तेमाल हुआ है। have been in use या have not been in use, हम कैसा ये करते हैं, have been in use, तो have है, सॉरी used नहीं, use, ठीक है ना। तो have आएगा, have के बाद आपका V3 आएगा, एंड देन यहाँ पर आपका V1 आएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपका आंसर बन जाएगा क्या, आपका आंसर बन जाएगा पार्ट 5, दैट इज नो एरर। ठीक है, सो वी हैव नो एरर इन दिस क्वेश्चन। क्या आप सबको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके जी, ओके जी, फाइन। चलो नेक्स्ट इस पे देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, सॉरी क्वेश्चन 12 देखना, ये नो एरर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एब्सोल्युटली फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, India largest utility vehicle and tractor maker is again in the race to acquire a stake in Swedish company which is a premium car maker. And read the statement again. India largest utility vehicle and tractor maker is again in the race to acquire a stake in Swedish company which is a premium car maker. So you have 1 minute or 1.5 minutes to solve this, and your time starts now. ओके, सो योर टाइम इज अप। चलो जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कहां पर एरर लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कहां पर एरर होगा। ओके, माधुरी is saying 1, Akanksha is saying 1, Pallav is saying 1. ओके ओके, आई नीड मोर आंसर्स। गलत हो गया तो भी चलेगा, चिंता मत करो, यहाँ गलती करना कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ गलती करना अच्छा होता है, नहीं तो वहां एग्जाम सेंटर जाओगे और वहां गलती करोगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। गुड गुड, चलो। ओके, सो एवरीबडी इज सेइंग वन, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन। सो इंडिया लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर। अब देखना यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई तो एक ट्रैक्टर व्हीकल और ट्रैक्टर मेकर है, मतलब यूटिलिटी व्हीकल एंड क्या है, ट्रैक्टर मेकर। ठीक है ना, सॉरी क्या हुआ है ये, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर, यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर। कौन सा, इंडिया का। ठीक है ना, इंडिया का यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर मेकर। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है, बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर गलती हो रही है, इंडिया की जगह पर होना चाहिए था इंडियाज। क्या होना चाहिए था, इंडियाज। यहाँ पर हमने पॉजेसिव लगाना था। ठीक है ना, क्या करना था हमें, हमें यहाँ पर पॉजेसिव का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि मेरी कार है या मेरी बाइक है, तो मैं क्या बोलूंगा, बाइक है। बाइक किसकी है, तो मेरी है, तो मेरा नाम क्या है, शेखर है। ठीक है ना, तो शेखर बाइक ऐसा नहीं होता ना, शेखर की बाइक है तो वो क्या होगा, शेखर्स बाइक, है ना। या फिर लेट्स से माधुरीज कार। ठीक है ना, माधुरीज कार। अब यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, माधुरी की कार है। ठीक है ना, माधुरी कार होगा या शेखर बाइक होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, हमें पॉजेसिव दिखाना है। अब यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर में करे किसका, कौन कहा, कौन से देश का, तो इंडिया का। तो इंडियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर मेकर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंडिया की जगह पर आपको होना चाहिए था इंडियाज, यहाँ पर पॉजिटिव की जरूरत थी, यहाँ पर होना चाहिए था इंडियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पार्ट ए में दिक्कत है। क्या ये बात समझ में आ गई आपके, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? ओके ओके, फाइन फाइन, चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल देना। चलो, let's move to the next question. That is question number 14, and here it is on your screen. I'll read it once for you. The fact that superior service can generate a competitive advantage for a company does not mean that every attempt to improving service will create such an advantage. Okay, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको देखना। और एक बार पढ़ता हूं मैं आपके लिए। The fact that superior service can generate a competitive advantage for a company does not mean that every attempt to improving service will create such an advantage. So you have another, let's say, a couple of minutes to solve this, and your time starts now.
ओके, सो योर टाइम इज अप। चलो जल्दी बताओ मुझे क्या क्या होगा। ओके, पल्लवी सिंह 3-2, प्रिया is saying 2, आकांक्षा is saying 3, पल्लवी is again saying 2. ओके ओके फाइन, वैष्णवी is also saying 2. चलो ठीक है, चलो देखते हैं। प्रणाली is also saying 2, चलो देखते हैं क्या होगा। सो ओके, क्या? यस आकांक्षा, यू रेज योर हैंड, कुछ कहना है क्या आकांक्षा? अच्छा चलो। Okay. So the fact that superior service can generate a competitive advantage for a company does not mean that every attempt to improving service will create such an advantage. ठीक है, देखते हैं। The fact that superior service can, the fact that superior service can generate, okay, ये पार्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, can generate a competitive advantage for a company. A competitive advantage for a company does not, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, so part 2 is also correct, mean that every attempt to improving service, okay, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, will create such an advantage, तो ये part 4 भी करेक्ट है। part 3 में गलती है, अब कहाँ गलती है मैं आपको बता दूं। देखो attempt जो है ना, attempt for example, let's say every attempt, ठीक है ना, every attempt at this exam, every attempt is crucial, ठीक है ना, every attempt is crucial। और एक सेंटेंस मैंने ऐसा लिख दिया, I am going to attempt, I am going to attempt this year's exam, ठीक है ना, I am going to attempt this year's exam, या फिर इतना अगर आपको ये नहीं करना है तो let's say I am going to attempt this, और this भी छोड़ो, थोड़ा इजी रखते हैं स्टेटमेंट को, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम, ऐसे रखते हैं, चलो ठीक है। सो एवरी अटेम्प्ट इज क्रूशियल एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम। अब देखना यहाँ पर अटेम्प्ट जो है इट इज एक्टिंग एज अ, और इट इज अ नाउन ओवर हियर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, नाउन है। लेकिन आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट, अब ये क्या हो गया, टू अटेम्प्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, ये वर्ब बन गया, हाँ या ना? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एवरी अटेम्प्ट इज क्रूशियल में अटेम्प्ट इज अ नाउन, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट, तो टू अटेम्प्ट हो गया तो वो बन गया आपका वर्ब, ठीक है ना। सो जब भी अटेम्प्ट इज एक्टिंग एज अ नाउन, जब भी अटेम्प्ट इज एक्टिंग एज अ नाउन, इसके बाद अगर कोई प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन आएगा एट, ठीक है ना। जब नाउन की तरह काम करता है तो जो प्रेपोजिशन आएगा एट, अगर अटेम्प्ट, ठीक है ना, अगर अटेम्प्ट वर्ब की तरह काम कर रहा है, अगर अटेम्प्ट वर्ब की तरह काम कर रहा है, सॉरी, अगर अटेम्प्ट वर्ब की तरह काम कर रहा है तो फिर प्रपोजिशन आता है टू। हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में या इस सेंटेंस में मीन दैट एवरी अटेम्प्ट, अब एवरी अटेम्प्ट देखो इस यहां से रिजेम्बलेंस दे रहा है ना स्टेटमेंट, ये वाला, तो अटेम्प्ट यहां पर क्या बन गया, अटेम्प्ट यहां पर बन गया आपका, क्या बन गया यहां पर, अटेम्प्ट बन गया आपका नाउन, नाउन बन गया तो नाउन के बाद कौन सा आएगा प्रपोजिशन, तो एट आएगा, तो टू की जगह पर आपको चाहिए था एट, ठीक है ना, टू की जगह पर चाहिए था एट, तो क्या होगा, द फैक्ट दैट सुपीरियर सर्विस कैन जनरेट a competitive advantage for a company does not mean that every attempt, देखो every attempt टू की जगह होना चाहिए था at, every attempt at improving service will create such an advantage। तो पार्ट 3 में एरर है, टू की जगह पर होना चाहिए था at, क्यों होना चाहिए at, क्योंकि attempt इस कॉन्टेक्स्ट में नाउन की तरह काम कर रहा है, एंड whenever attempt
acts as a noun, or whenever attempt is a noun, it has to be followed by the preposition at. ठीक है, आई बात समझ में? ओके जी, ओके, फाइन फाइन, चलो जी, ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। ये रहा स्क्रीनशॉट निकालने के लिए आंसर वाला स्लाइड। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये देखो, ये जो बात है ना, द प्रेजेंस ऑफ डिटरमाइनर एवरी। हाँ, ये जो एवरी है ना, वो एवरी इंडिकेट करता, क्या इंडिकेट करता है कि अटेम्प्ट जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया है। ठीक है ना, वो नाउन की तरह यूज किया गया है। सो देखना, ये वाला एग्जांपल देखना, यहां पर भी मैंने एवरी अटेम्प्ट लिखा हुआ था और यहां पर मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दी एग्जाम। तो वेन एवर वी यूज एवरी, अटेम्प्ट क्या बन जाता है? अटेम्प्ट बन जाता है नाउन। अदरवाइज, मतलब ऐसा नहीं है, बट जब भी एवरी का इस्तेमाल होगा, डिटरमाइनर का इस्तेमाल होगा, तो अटेम्प्ट बन जाएगा नाउन। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। I'll read it for you. According to the circular that was issued yesterday, RBI will rise the rate at which it lends to banks. I'll read it again. According to the circular that was issued yesterday, RBI will rise the rate at which it lends to banks. You have 1 minute to solve this question. या 1.5 मिनट ले लो, आपका समय चालू होता है अब. So you have 1.5 minutes to solve this question. Your time starts now. ओके, सो योर टाइम इज अप। चलो कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा इसका आंसर। ओके, वैष्णवी 3, आकांक्षा कह रही 4, पल्लवी भी कह रही 4। ओके, चलो देखते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था ये। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर दैट वाज इशूड यस्टरडे, आरबीआई विल राइज द रेट विच इट लेंड्स टू बैंक। देखो, राइज नहीं होगा, राइज की जगह पर होगा रेज। क्या होगा? राइज की जगह पर होगा रेज। आरबीआई विल रेज द रेट। ठीक है ना। अब राइज जो है, राइज, एक मिनट, राइज जो है, राइज इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या है?
इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं होता, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जाता है। यहाँ पर रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इट ट्रांसफर्स ओवर टू दी ऑब्जेक्ट। सो आरबीआई विल रेज द रेट, ठीक है ना, रेज द रेट, क्या रेज करेगा, तो रेट रेज करेगा, ठीक है ना। अभी इसको हम ऐसा अगर लिख दे, ठीक है ना, तो मान लो अगर ऐसा लिख दे यहाँ पर, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला स्टेटमेंट, आरबीआई रेजेस द रेट, ठीक है जी। तो सन राइट, सॉरी ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है ये, सन राइजेस, सनराइजेस। अब ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बस इसको व्हाट पूछना, इस वर्ब को व्हाट पूछना, अगर जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। सनराइजेस व्हाट, नहीं मिल रहा है जवाब। सनराइजेस वेयर, तो इन द ईस्ट, तो वेयर से मिल रहा है, व्हाट से मिला तो ऑब्जेक्ट होगा। सनराइजेस व्हाट, नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये वर्ब क्या हो गया आपका, ये वर्ब बन गया आपका इंट्रांजिटिव, ये वर्ब बन गया आपका इंट्रांजिटिव, आईटी लिख रहा हूं मतलब इंट्रांजिटिव। अब यहां पर पूछना आरबीआई रेजेस, रेजेस व्हाट, रेजेस व्हाट, तो रेजेस रेट, तो ऑब्जेक्ट मिल गया, है ना, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये वर्ब कौन सा हो गया, ये वर्ब हो गया आपका ट्रांजिटिव। आई बात समझ में, ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आरबीआई विल रेज व्हाट, ठीक है ना, अगर ये सेंटेंस देखा तो आरबीआई विल विल डैश द रेट, ठीक है ना, आरबीआई रेजेस व्हाट, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा हमने खुद को कि आरबीआई आरबीआई क्या बढ़ाएगा, आरबीआई रेजेस व्हाट, तो आरबीआई क्या बढ़ाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलता है, व्हाट पूछने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, तो वो रेट बढ़ाएगा। तो रेट क्या बन गया आपका, रेट बन गया आपका ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है किसी इसमें तो राइस की जगह पे क्या होगा, राइस की जगह पर आना चाहिए, राइस की जगह पर आना चाहिए आपका रेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर दैट वाज इशूड यस्टरडे, आरबीआई विल राइज नहीं आएगा, राइस की जगह पर आएगा रेज, रेज द रेट एट विच इट लेंड्स टू मैक्स। आई बात समझ में, हैव यू गाइस अंडरस्टूड, ओके 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 जी, चलो जी, देन लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट ये रहा आंसर वाला स्लाइड, स्क्रीनशॉट निकालना जल्दी। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, I'll read it for you. As per the new design, all the appliances inside the building will be powered by solar energy. और एक बार पढ़ता हूँ, as per the new design, all the applications inside the building will be powered by solar energy. आपको you'll be getting 1.5 minutes to solve this question and your time starts now.
ओके, सो योर टाइम इज अप। चलो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या हो रहेगा इसका आंसर। Okay, Akanksha is saying 4, Pallavi is saying 3, Kehkasha is saying 4, Madhuri is also saying 4. Okay, okay. Chalo guys, I want more participation. Ishan is saying 4. Okay, very good. गलती हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती करो, राम टेकड़ी जाके गलती नहीं करनी है। Okay, Vaishnavi is also saying 4. Okay, fine. चलो, let us look at the question again. अब मैं बताता हूँ कहाँ पर error है। As per the new design, ठीक है, as per the new design सही है, कोई दिक्कत नहीं। As per the new design, all the appliances inside, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। All the appliances inside the building will be powered by solar energy. Will be powered by solar. अब 4 में गलती है। देखो, part 3 is absolutely fine, second part is fine, first part is also fine, fourth में दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, इसको ऐसा लिखते हैं, the building will be, ठीक है ना। अब यहां पर ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है ना। द बिल्डिंग विल बी डैश बाय सोलर एनर्जी। द बिल्डिंग विल बी डैश बाय सोलर एनर्जी। हाँ जी, ऐसा ही है ना स्टेटमेंट, कोई गलती है क्या? अगर इफ वी कंबाइन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ऐसा ही लिखा है ना, द बिल्डिंग विल बी डैश बाय सोलर एनर्जी। यस और नो? चलो थम्स अप से बताओ मुझे। ओके, चलो परफेक्ट परफेक्ट। अब मुझे पता नहीं ये कौन सा टेंस आ रहा है यहाँ। Which tense are we talking about, or which tense is the sentence talking about? कौन सा टेंस लग रहा है आपको? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट? फ्यूचर। ओके, वेरी गुड आकांक्षा, इट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में कौन सा लग रहा है? अब एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। सिंपल फ्यूचर? नहीं नहीं माधुरी, गलत हो गया, ये सिंपल फ्यूचर नहीं है। देखो, आई विल स्टडी, ठीक है ना, जो कि आप शायद आप लोग सारे लोग रोज बोलते होंगे लेकिन करते नहीं होंगे। आई विल स्टडी, अब ये क्या है? दिस इज सिंपल फ्यूचर, कि मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। दिस इज सिंपल फ्यूचर, आई विल स्टडी, ठीक है ना। आई विल बी, अब क्या होगा? आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग, करेक्ट? करेक्ट या नहीं? तो ये क्या हो गया? ये लग गया आपका पार्टिसिपल, ये लग गया आपका पार्टिसिपल, ठीक है ना। आई विल बी स्टडिंग, बाय दैट टाइम ही विल बी स्टडीड, ठीक है ना। यहाँ सॉरी स्टडिंग, यहां पर आ गया आपका आईएनजी फॉर्म आ गया, ठीक है, ठीक है ना। आई विल बी स्टडिंग, तो ये हो गया आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। अब यहां पर आई विल हैव स्टडीड ऐसा आ जाएगा, आई विल हैव स्टडीड, फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव बीन स्टडिंग, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट, और ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप हो गए, ठीक है ना। अब क्या लगता है आपको, अब क्या आना चाहिए? अब क्या आना चाहिए इस ब्लैंक में? चलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आना चाहिए ब्लैंक में, क्या लगता है आपको? पावरिंग, okay, Akanksha is powering, Vaishnav is saying powered, okay, 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 okay। अब देखना,
अब जो यहाँ पर मैंने जो भी समझा है वहां उस हिसाब से तो आपको लग रहा है स्टडिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टडिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है ना, कि वो बिल्डिंग को पावर मिल जाएगी। एक्टिव सेंटेंस में आई विल बी स्टडिंग या फिर आई प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, लेकिन जब पैसिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना, जब पैसिव सेंटेंस होता है तो पैसिव सेंटेंस में आपका पास्ट पार्टिसिपल लगता है। क्या लगता है? पास्ट पार्टिसिपल। इसलिए द बिल्डिंग विल बी पावरिंग नहीं, वो आएगा द बिल्डिंग विल बी पावर्ड। क्या समझे? जब भी पैसिव सेंटेंस होता है तब उसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा? द बिल्डिंग विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना? आई बात समझ में? एक्टिव वॉइस में रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, पैसिव वॉइस रहेगा तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। हैव यू गाइस अंडरस्टूड? समझा है या और एक बार समझा दूं? ओके 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 फाइन, चलो समझा है तो अब क्या आएगा इस ब्लैक में ये बताना, ठीक है? अरे ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ कुछ तो। माय प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट विल बी डैश टुमारो, माय प्रोजेक्ट विल बी डैश टुमारो। और वर्ब का इस्तेमाल करना है कंप्लीट, ठीक है ना, ब्रैकेट में मैंने आपको एक वर्ब दिया है दैट इज कंप्लीट, उसका सही फॉर्म यहां पर आपको इस्तेमाल करना है। तो ब्लैंक में क्या आएगा जल्दी बताना। वेरी गुड वैष्णवी, माय प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे प्रणाली, प्रिया, वैष्णवी, आकांक्षा, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? माय प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। इवन दो विल प्लस बी है, लेकिन हमने यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया क्योंकि द सेंटेंस इटसेल्फ इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, द सेंटेंस इटसेल्फ इज इन पैसिव वॉइस। ओके, चलो देन आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट निकालना है इसका अगर आप चाहते हो तो। वैसे इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं आंसर में, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, तो जस्ट कीप इन माइंड एक्टिव पैसिव वॉइस का ये सीन था विद प्रेजेंट विद टेंसेस। तो दो चीजों को मिक्स किया था, एक था टेंस, एक टॉपिक था टेंस और दूसरा था एक्टिव पैसिव। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। I'll read it for you. Bolton not only realized that this engine could power his manufactory, but also that its production might be a profitable business venture. I'll read it again. Bolton not only realized that this engine could power his manufactory, but also that its production might be a profitable business venture. You have 1 minute to solve this, and your time starts now.
पे अटेंशन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलो बताना कहां पर एरर होगा। Akanksha is saying 5, no error. Okay. ओके, बाकी लोग सिर्फ विशाल अच्छा माधुरी ने बोला है 3। ओके माधुरी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए था, पहले ही बोला था मैंने। दैट वोंट बी एन एरर। Vishal is saying 5. Okay, fine. So the correct answer is 5. There is no error. Bolton not only realized that this engine could power his manufacturing, but also that its production might be a profitable business venture. No, 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 no. Sorry, sorry. यहाँ पर error है. Come back to this point. यहाँ पर error है. 5 आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा. नो एरर नहीं, यहाँ पर एरर है. देखो, Bolton not only realized that this engine could power his manufacturing, but also, अब देखो, not only but also का ये एरर है. Not only but also, not only but also का ये यूजेज है, तो एरर यहाँ पर है. देखना, not only but also क्या करता है. Not only but also, not only but also always joins two things. दो चीजों को वो ज्वाइन करता है. वो दो चीजें क्या हो सकती है? वो दो चीजें आपकी ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है ना. इट कैन ज्वाइन टू ऑब्जेक्ट्स और वर्ब्स और नाउन्स, एनीथिंग, बट दो चीजें होनी चाहिए. अब यहाँ पर क्या लिखा है? बोल्टन नॉट ओनली रियलाइज्ड, ठीक है ना. बोल्टन नॉट ओनली रियलाइज्ड क्या? दैट दिस इंजन कुड पावर हिज मैन्युफैक्चरिंग. तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा. यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बोल्टन, ये ऐसा होना चाहिए था. बोल्टन रियलाइज्ड, क्या रियलाइज किया? नॉट ओनली दिस इंजन, नॉट ओनली दैट, दैट नहीं आएगा यहाँ पर. नॉट ओनली, हाँ, नॉट ओनली दैट दिस इंजन जो आगे का है could power his manufacturing, but also its production, but also its production. अब क्या हो गया? बोल्टन रियलाइज नॉट ओनली, अब यहाँ पर क्या है? इंजन, इंजन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट इंजन और ये प्रोडक्शन, इन दोनों को लिंक किया है. किसने लिंक किया है? तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो ने, ठीक है ना. दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए थे वहां पर. नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑलवेज जॉइंस टू और मोर, नॉट टू और मोर बट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स कौन सा है? एक तो इंजन है और दूसरा आपका प्रोडक्शन. सो दैट इज द एरर. नॉट ओनली जो है वो रियलाइज से पहले नहीं, रियलाइज के बाद में आना चाहिए था. Have you got the point? Did you understand? Okay, 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 fine. चलो, let's move on then. तो आपका ये पार्ट 1 में एरर होगा. पार्ट 1 में आपका एरर है. तो ये रहा उसका आंसर का स्लाइड. जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालना. Okay. I hope that everybody has taken screenshot. Assuming it, let us move forward to question number 18, and here it is on your screen. I'll read it once for you.
Apart from entertaining audiences, David cherishes the thought that he's actually practicing very important community activity. I'll read it again for you. Apart from entertaining audiences, David cherishes the thought that he's actually practicing very important community activity. So you have 1 minute to solve this question and your time starts now. ओके, सो योर टाइम इज अप. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्या आंसर रहेगा इसका. चल, पल्लवी सिंह 1. और बाकी लोग ओके, नहीं समझा क्या? आकांक्षा इज ऑल्सो सेइंग 1. ओके ओके, चल देखते हैं कहां पर एरर है. चलो, आई रीड इट अगेन फॉर यू. पार्ट 1 क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग ऑडियंसेस, मतलब ऑडियंसेस को एंटरटेन करने के बावजूद अलावा भी वो कुछ और करता है. ठीक है ना? तो पार्ट 1 में नो एरर, इट इज करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग ऑडियंसेस, डेविड चेरिशेस द थॉट, मतलब उसको ये भी अच्छा लगता है क्या? दैट ही इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग. ही इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग. सो पार्ट 2 इज करेक्ट, पार्ट 3 इज करेक्ट. ठीक है ना? तो एरर आपके पार्ट 4 में. ठीक है ना? डेविड चेरिशेस द थॉट दैट ही इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एक्टिविटी. ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एक्टिविटी. चलो, बहुत आसान था. मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या इसका आंसर रहेगा. ठीक है ना? आई राइट माई स्कूल अरेंज्ड एक्टिविटी, ब्लैंक रखा है बीच में. ठीक है ना? माई स्कूल अरेंज डैश एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स. अब बताना इस ब्लैंक में क्या आएगा. चलो 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 जल्दी. माई स्कूल अरेंज डैश एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स. अब इस जो ब्लैंक रखा है मैंने, उस ब्लैंक में क्या आएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ. आकांक्षा इज सेइंग एन. ओके फाइन. और चलो बाकी लोग सो गए क्या? वैष्णव इज ऑल्सो सेइंग एन. ओके ओके. पल्लव इज ऑल्सो सेइंग एन. ईशान इज सेइंग एन. ओके फाइन. तो यहां पर क्या आएगा? माई स्कूल अरेंज्ड एन एक्टिविटी. अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी नाउन है कि नहीं? इट इज अ नाउन. कौन सा नाउन है? तो इट इज अ काउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन जब भी हम यूज करते हैं तो उससे पहले, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन से पहले वी आर सपोज टू यूज अ या फिर एन. कोई तो एक आर्टिकल आना चाहिए ना. एक्टिविटी, एन एक्टिविटी, और माई स्कूल अरेंज द एक्टिविटी. कुछ तो एक आर्टिकल आना चाहिए. अब जैसे यहां पर आपने एन लगाया. अब यहां पर आना वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एक्टिविटी. अब एक्टिविटी यहां पर भी क्या है? इट इज अ काउंटेबल नाउन. CN लिख रहा हूं मैं. काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है. ठीक है ना? सिंगुलर भी है. तो सिंगुलर एक्टिविटी के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में. कौन सा आर्टिकल आएगा सिंगुलर एक्टिविटी होगी तो? मतलब
एन आएगा, आएगा ना, क्योंकि वेरी से इसको वेरी एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। देखो वेरी का इस्तेमाल किया तो क्या होना चाहिए था, अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एक्टिविटी। यहां पर क्या होना चाहिए था, वेरी से पहले वी शुड पुट अ और वी शुड पुट एन आर्टिकल ओवर हियर, ए। आई बात समझ में? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? ओके जी, ओके जी, चलो ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट निकालना जल्दी। ओके, ओके फाइन। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। He said that the aircraft flew sorties twice a day in the early stages of the exercise and have to be fully replenished both times. I'll read it again. He said that the aircraft flew sorties twice a day in the early stages of the exercise and have to be fully replenished both times. You have 1 minute to solve this question. Your time starts now. बहुत ही आसान है ये। ओके, सो योर टाइम इज अप। जल्दी बताना मुझे क्या होगा। टाइम इज अप। कमेंट सेक्शन में बोलना क्या होगा इसका आंसर। पल्लवी सिंह 4। ओके, बाकी लोग। माधुरी इज ऑल्सो सेइंग 4। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। ही सेड दैट द एयरक्राफ्ट फ्लू। ओके, सॉर्टीज। सॉर्टीज मतलब, सॉर्टीज मींस अटैक। ठीक है ना, अटैक टाइप होता है, डिफेंसिव पोजीशन से अटैक करना बाय समथिंग इज नोन एज सॉर्टीज। सो जनरली ये डिफेंस रिलेटेड ही टर्म है। ठीक है ना। सो ही सेड दैट द एयरक्राफ्ट फ्लू सॉर्टीज ट्वाइस अ डे इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एक्सरसाइज एंड हैव टू बी फुल्ली रिप्लेनिश्ड बोथ टाइम्स। अब देखना यहां पर क्या है, एक तो ये चीज है कि ये स्टेटमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। ही सेड दैट द एयरक्राफ्ट फ्लू, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना है। और दूसरा ये है कि ये पास्ट में है। ठीक है ना, ही सेड दैट एयरक्राफ्ट फ्लू, तो पास्ट में है, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब ये पार्ट तो सही है, ही सेड दैट द एयरक्राफ्ट फ्लू, सही है। क्या फ्लू किया, सॉर्टीज ट्वाइस अ डे इन द अर्ली, ये भी सही है। अर्ली स्टेजेस ऑफ द एक्सरसाइज, ये भी सही है। हैव टू बी फुल्ली रिप्लेनिश्ड की जगह पे होना चाहिए था हैड टू बी। हैव की जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए था हैड का, क्योंकि ये पहले ही पास्ट में सेंटेंस चल रहा है और इनडायरेक्ट भी है। तो हैव की जगह क्या आना चाहिए था, हैव की जगह हैड आना चाहिए था। क्या ये बात समझिए आपको? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो आपका आंसर रहेगा पार्ट 4 में। लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सप्लेनेशन। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालिए। Okay, so let's move to the last question of the day. Try to avoid chewing. What is this? Try to avoid chewing khat late at night and never take sleeping pills unless it is not prescribed by a doctor. Try to avoid chewing khat at late at night and never take sleeping pills unless it is not prescribed by a doctor. So you have 1 minute to solve this question. Your time starts now.
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो चलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या रहेगा आंसर। कहकशा इज सेइंग 4, ओके। बाकी लोग, आकांक्षा इज सेइंग 4, बाकी लोग चलो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। Vaishnavi is saying 4, Kahkasha is saying 4, Akanksha is saying 4. Let's look at this. Try to avoid chewing cut late at night or cut late at night. I don't know the exact pronunciation of this, but this is a leaf. ठीक है ना, जिसको चबाने के बाद थोड़ा सा नशा टाइप होता है या नींद टाइप आती है। ठीक है, सॉरी लेट क्या बोल रहा हूँ, दिस इज मोर लाइक लीफ, पत्ता होता है ये। ठीक है ना। Try to avoid chewing cut late at night and never take sleeping pills unless it is not prescribed by your doctor. अब देखना नेवर का इस्तेमाल हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन था। तो जब नेवर आता है, नेवर क्या दिखाता है? नेवर दिखाता है निगेशन। निगेशन बोले तो नेगेटिव सेंस, नेवर, नॉट, ये सारे क्या बताते हैं? ये निगेशन बताते हैं, नेगेटिव सेंस बताते हैं। एक सेंटेंस में आइदर नेवर होगा या फिर नॉट होगा, दोनों चीजें नहीं होगी। ठीक है ना। नेवर आ गया। ट्राई टू अवॉइड चीविंग कट लेट एट नाइट एंड नेवर टेक स्लीपिंग पिल्स अनलेस इट इज नॉट प्रिस्क्राइब। अब इधर नॉट नहीं आएगा, ठीक है ना, अनलेस इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, क्योंकि पहले ही निगेशन आ चुका है नेवर का इस्तेमाल करके। पहले ही नेगेटिव सेंस दैट इज निगेशन सेंटेंस में आ चुका है बिकॉज ऑफ द वर्ड नेवर। तो अब बाद में आपको नॉट लगाने की जरूरत है नहीं, है ना। इसलिए ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पर एरर है, इट इज नॉट प्रिस्क्राइब की जगह पर होगा इट इज प्रिस्क्राइब अनलेस। ठीक है ना, नेवर टेक स्लीपिंग पिल्स, नेवर टेक स्लीपिंग पिल्स अनलेस प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर। तो फोर्थ पार्ट में आपका एरर रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? ओके 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 फाइन, ओके फाइन। सो दैट इज इट आई थिंक। या ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन वाला, स्क्रीनशॉट निकालना अगर चाहिए तो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द डे गाइस। आई होप आपने नया सीखा होगा कुछ। ये सारे जो रूल्स है, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो उसका एक अलग सा नोट बना के रखना, ये आपको काम आएगा। जब एग्जाम टाइम नजदीक आएगा तो इसी से रिवाइज करोगे। ठीक है, आई होप एरर डिटेक्शन या एरर स्पॉटिंग आपको अच्छा लग रहा है एंड आपको इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद एन एक्सटेंडेड सीरीज ऑफ एरर डिटेक्शन। बहुत सारा एरर डिटेक्शन करवा के लूंगा मैं ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू। सो डू अटेंड इट। जैसे आपने आज अटेंड किया था वैसे ही अगले सेशंस भी अटेंड करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द next session of error detection. Till then, goodbye and have a nice day.